Hello students, I am Dr. Shrivastava from SRMCM Lucknow. Now, I am covering lecture 31 in the pressure measurement, remaining part of the 30th lectures. So, here we discuss before we discuss the diaphragm and Bourdon tube gauge, we are considered as the bellows and low vacuum and ultra high vacuum pressure measurement. Here discussed about the, now coming to the bellows gauge. You can consider the bellows pressure gauge. In previous we can discuss about the C type Bourdon tube and diaphragm types. There is the diaphragm type, we are using the different shape type of diaphragm, same as the bellows, we can use the different type of bellows for measuring the pressure gauge, but they are using the pressure gauge measurement, we are using the medium and high. This is remembering, if you remember, you have considered any medium and high pressure. You can blindly use the C type Bourdon tube or diaphragm gauge or bellows pressure gauge. So, this is the same measurement, the continuation of that 30th lecture, we are considering the bellows pressure gauge. In this bellows pressure gauge, thin walled metallic, we are using the in the corrugated form, that is the metallic disc with the considered sides allow the expand and contract. ये या तो कॉन्टैक्ट होंगे या एक्सपैंड कर जाएंगे, तो इससे ये हमारा क्या होता है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, which one that using the then the C, if you using the C type, so there is the that C is extract or compress, extract, and in the diaphragm there is the again, but here is the this is the contract or expand, there is a difference, application is different and that process is different, but the measurement part and the other part is the same. Okay. So, with the one end closed and the other end remain open, the same as bellows, same as diaphragm and same as C type. The one tie is open and last time Jack and Penny was using, there is the closed. When comparing all threes, sometimes they ask about the comparison between Bourdon, bellows and diaphragm. So, I am just discussing that part also. When applied the force open the side of the bellows, it expands the size of the disc. The close in move freely and the rod connected between the open and end, close in move upwards and rotate the pointer, same in diaphragm, same in bellows, same as Bourdon tube. If you remember that point, there is the C type applies the pressure, the last end is your fixed type. In the we are using the diaphragm, the same, applies the force, the diaphragm position will be changed. In the same is the bellows, we can consider the one side is the free and other side is the fixed close end. So, move upward and downward and rotate the pointer, which will show the value of pressure. This is a direct measurement of your pressure with the help of bellows pressure gauge. So, bellows there is a naturally there is some characteristics are different from diaphragm gauge and Bourdon tube gauge. There is some construction is different because we are using the C type Bourdon tube, then using the diaphragm, different type of diaphragm shapes, and then again coming to the bellows. There the bellows construction is the spring loaded, expansion loaded and prolongs its life. You know, though generally spring type होती है, you can change it, extract it, when the compress it, the same वही principles है we can using here. Expansion of the bellows, the first we loaded the spring oppose the bellows up and preventing in the form of full expansion. The limiting of full expansion of the bellow protects it and prolongs its life. In a spring loaded bellows, when using the spring loaded bellows, the deflection is the result of the force acting the bellows and opposing the force of the spring. भाई आप ऊपर से लगा रहे हैं, उसको स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे से तो बैक, दैट प्रेशर इज अपोजिंग द दैट वो. तो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेलोस की जो होती है वही होती है. द डायमीटर में वेरी फ्रॉम 0.5 to 12 inch. दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर this is the, just a minute, we can consider here yes. So, we can consider here the 0.5 to 12 inches. The large diameter means the higher sensitivity. You can use for large diameter, but the sensitive improvement of accuracy in comparison to the C2 and diaphragm, then to the fold can vary between 5 to 20. So, there is the in the bellows form maximum fold is between the 5 to 20, the best is the 8 to 10.
Actually we are using the folded in the bellows, we are using the 8 to 10, but you can use 5 to 20 as per requirement, or fold means the larger stroke length and the generated larger force required more than we are using the 10 kg or we are using 100 kg, or that time we are using the some different more increase the more fold, but we are general purpose we are using the 10 kg, 20 kg, 50 kg or grams or milligrams, then using the increase the folds, and these folds depend on the pressure range, जैसे pressure range होगी इसके according करेंगे. The stroke length, the bellows may be fabricated from the different material such as phosphor, bronze, brass, beryllium, copper, SS. At present we are using the SS or other metals that are suitable for the intended purpose of the gauge. अब जो हमारा बनाते हैं जैसे भी यूज़ करते हैं, अब फिर ये जो मटेरियल्स भी होते हैं किसी के भी हों, हम मॉडर्न ट्यूब में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं ब्रॉस को यूज़ करते हैं, बट इन द केस ऑफ द योर bellows or we can use as the diaphragm, we prefer as the bronze also, we are using as the copper also, but copper is the expensive. So, फिर we are using the SS. At present scenario, we are preferring the stainless steel for the making of the pressure gauge. जब चाहे diaphragm हो या फिर आपका bellows हो या फिर आपका कुछ भी हो, तो C type Borden tube है या कहीं पे भी prefer है ना, तो mainly the bellows they are different. This is the relative pressure. Then using these are the, this is the bellows, the fold. I am saying the fold word. This they are using the 1, 2, 3, 4, 5 fold. These are the folds. जैसे जैसे corrugated आपका होता है, you can use the corrugated form. So these are the fold. तो process measurement, low pressure measurement, फिर consider the, this is the shape of your bellows. This one. तो ये you can increase, that force will be increased. Here you can increase, here you can increase as per range of the force, as per the requirement of the force, as per the application. So we can consider type of pressure. The effective factor is the area of the bellows, spring gradient, the material used, the which is using the there is the some different materials. We are using in the this spring also. This is the spring. These are the bellows fold. These are the bellows fold. All three are the bellows type. So we are using the this material used for the material consideration is material. We are generating the fold of that metallic fold. This is not paper fold. This is not your, we are using paper fold, no problem, but we are using the metallic fold. If brittleness is increased, then fold will be broken. So we can consider that material. There is some flexibility. So although the some bellows instrument can design measuring a pressure up to 800 psi, Pascal square inch gauge. So this is for heavy duty also we are using. At that time we are using the metallic bellows. So for consideration, the material is very important for the all the bellows. Borden we are using the brass, but in the diaphragm also. So we can consider here is the measure with the help of the these gauges. We can using the relative pressure, absolute pressure and differential pressure. We can discuss about the, this is the relative pressure in terms the, this is the your indicator. जो Borden tube में किया था, the same thing is the material will be this is your bellows. There is the absolute pressure in between pressure vacuum and process pressure. तो इसके बीच में जब हम apply करेंगे, this is the fixed and here we apply the pressure. जिसका measurement करना है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, this is the pressure. Same thing is here, upper is fixed, there we are applying this point. The same thing is here, either the differential pressure. In the differential pressure, apply both sides of pressure. This is the P1, this is the P2. So the P is equal to P1 minus P2. So that is measured with the help of the bellows. We are measure the differential pressure. Okay. So the gauge or changes. We can consider the measurement is here in this diagram, we consider only the bellows. You can use here is the diaphragm also. We can use here as the Borden also for the relative measurement, for the absolute pressure measurement, especially we prefer for the measurement, we are this is using the differential pressure measurement. Mostly we use measure the pressure. If you measure the again flow, we have seen the flow measurement, they are considered as the differential pressure. So, when we measure the flow, we discuss the measure flow, then we consider the differential pressure concept. Please,
इसको याद रखना है आपको कि किस तरह से हमारा काम करता है, क्योंकि ये हमें दो प्रेशर हमें दोनों साइड से अप्लाई करना है, दिस साइड एंड दिस साइड। इसके पहले जितना मेजरमेंट है वो वन साइडेड है, वन साइड इज़ फिक्स, वन साइड इज़ फिक्स, अनदर साइड वी अप्लाइड द फोर्स, चाहे वो हमारा सी टाइप हो, बॉर्डन ट्यूब हो, चाहे बेलोज हो, चाहे हमारा आपका डायाफ्राम हो। बट जब डिफरेंशियल प्रेशर मेजर चाहे हम दोनों तरफ से लगाते हैं, डायाफ्राम में भी लगाएंगे तो वी कैन क्रिएट द डिफरेंशियल, वी अप्लाइड द टू प्रेशर बोथ, उन दोनों के डिफरेंस से जो आएगा वो रीडिंग हमारे यहाँ पे, वो रीडिंग हम इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारे मैथड्स हैं, हम कोई भी गॉज लेते हैं या गेज लेते हैं, समटाइम नोन एज, तो वी कैन यूज़ इट। नाउ कमिंग टू द मैक्लॉयड गेज। तो जो हमारा मैक्लॉयड गेज किसके लिए था? मैक्लॉयड गेज मेजरमेंट फॉर द वैक्यूम और लो प्रेशर मेजरमेंट। जितने भी अब हमने पहले डिस्कस किया था 30th लेक्चर में अपना कि हमने मैनोमीटर, ये हमने वहाँ पे आपको यूट्यूब बताया था, इंक्लाइंड टाइप भी होता है, डिजिटल टाइप भी होता है, बट बेसिक कंसेप्ट इज सेम। इंक्लाइंड लाइक जहाँ पे एप्लीकेशन होती है वहाँ पे इंक्लाइंड यूज़ कर लेते हैं। वेल टाइप भी होता है, वी कैन यूजिंग सम टाइम वेल टाइप, वेल बना के बीच में बैरोमीटर हम लगाते हैं, बैरोमीटर में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यूज़ किया था आपके मीडियम एंड हाई प्रेशर मेजर, देन वी कंसीडर द गेजेस। हमारा बॉर्डन ट्यूब गेज था, हमारा डायफ्राम गेज था, हमारा बेलोज था, और उसके बाद हमारा था वैक्यूम मेजरमेंट एंड अल्ट्रा हाई वैक्यूम मेजरमेंट। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हमारा मैक्लॉयड गेज है, उसके बाद हमारा आपके कंडक्शन गेजेस हैं, उसके बाद हमारा आयनाइजेशन गेज। तो अब आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ वैक्यूम। अगर आप प्रेशर का याद करिए तो वैक्यूम मेजरमेंट भी था। तो जनरली अब इसके पहले हमने विद द हेल्प ऑफ द गेज फैक्टर वी कैन मेजर द गेज प्रेशर। नाउ कमिंग टू द मूव टू द वैक्यूम प्रेशर, दिस इज वेरी important gauge measurement, लेकिन this is used for the not a very common purpose. You have never seen in the Macnaught gauge or a Pirani gauge or your ionization gauge, or you can say the conduction gauge, but you can see the all Borden gauge or diaphragm gauge or basically directly. Everybody have seen this this type of gauges, but this is the for generally for the special purpose, especially for the vacuum measurement, and generally for the using for the research purpose and industry purpose, and for the we are using laboratory purpose also, when they create the vacuums, or sometimes as a power plant they are using create the vacuum, that time we are using these gauges. तो आपको normal conditions में you can't see that type of gauges, vacuum gauges. Vacuum gauge you can see sometime directly in the turbine or boiler, that time you can see the some in the external part we are using maintain the vacuum, at that application we can consider the vacuum gauge. But here is we discuss the now coming to the Macnaught gauge. तो जैसे इसका नाम ही है, तो ये साइंटिस्ट के नाम पे ही हमारा है, जिन्होंने इसे डेवलप किया था उन्हीं के नाम पे ये मैक्नॉट गेज रखा गया। वैक्यूम मेजरमेंट के लिए होता है, बहुत ही लो रेंज के हम वैक्यूम मेजर करता है, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻⁴ तक का यह मेजरमेंट करता है हमारा, किसका? वैक्यूम का। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, लो मेजरमेंट है, वेरी लो मेजरमेंट है, प्रेशर मेजरमेंट है, लेकिन प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेरिक से नीचे साइड में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया है मैंने, तो उसमें जो वैक्यूम मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पे होता है, जैसे प्रिंसिपल वैसे ही है, एज इज मर्करी मेजरिंग सब यूजिंग द मैक्लोग्रेड, मर्करी मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है, डायग्राम आप देखेंगे। बट हेयर क्योंकि गैस के लिए यूज़ होता है, जनरली हम गैस में यूज़ करते हैं, भाई वैक्यूम तभी होगा वी कैन क्रिएट द सम गैस, तो इसलिए हम वी कैन कंसिडर एज अ बिफोर मूविंग टू द मैक्नॉट गेज वी कैन डिस्कस अबाउट द बॉयल्स लॉ। सी द बॉयल्स लॉ, for a gas of a certain quantity of constant temperature, that parameters I am underlying that parameter, the pressure of gas varies inversely with the respect to the volume of gas. Please this is known as the Boyle's law. उस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम मैक्नॉट गेज पे वर्क करेंगे। प्रिंसिपल कैसा है? दैट इज यूजिंग द मर्करी मैनोमीटर, द कंस्ट्रक्शन इज चेंज बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द two capillaries, the same thing is here. But we are consider for the gas measurement, in vacuum measurement we can consider as the P is equal to 1 upon V, PV is equal to constant. So we can consider P1 V1 is equal to P2 V2. This is the simple Boyle's law. तो जो हम we can consider the volume with unknown pressure, ठीक है, एक हमारा जो क्या है वो दैट इज अननोन प्रेशर। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? विद यूज द कैपिलरी constant temperature, by knowing the final volume change in pressure we can calculate the initial pressure of for the gas or vacuum, जिसका भी मेजरमेंट करना जनरली वी कैन यूजिंग द वैक्यूम मेजरमेंट, समटाइम यूजिंग द गैस, बट कॉन्सेप्ट गैस का आता है, दैट्स व्हाई यूजिंग द Boyle's law.
दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द वर्किंग. इफ़ यू कंस्ट्रक्शन अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो वर्किंग अपने आप ही आप लिख लेंगे, क्योंकि मेन इस पर हमारा यही है. वी आर यूजिंग द, देयर इज अ टू डायग्राम. दिस इज द बिफोर कंप्रेशन, after compression. First we discuss about the parts of that McLeod gauge. There is the, these are the capillaries, this measuring capillary, this is the reference capillary, ये जो आपकी पूरा ये constructions है. Then using the bulb, this is the cut off, this is the reservoir, piston and plunger. Sometimes they use up and down, sometimes they rotate, depend on that your construction manufacturing part, कि they are using as a rotating plunger or piston और ये up and down plunger or piston, it will depend on the manufacturers. तो but here we can consider up and down. तो जैसे आप ये देख रहे हैं, there is the at that time, this is the before compression, मतलब हमने प्लंजर को ऊपर उठाया हुआ है. तो ये क्या होगा, जब मैक्लोड कंसिडर पहले कंसिस्ट है तो देख ही लिया, मरकरी रिजर्वायर है, रेफरेंस कॉलम है, ये लेते हैं सेम एज मैनोमीटर, ओनली कंस्ट्रक्शन डिफरेंस. अगर ये मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वो एच डिफरेंस था, एक हमारा मेजरिंग था और एक हमारा डिफरेंस था. यहाँ पे भी एक हमारा मेजरिंग है, एक हमारा रेफरेंस है, इसलिए आप उसमें आगे बोला. बट हियर वी यूजिंग द मरकरी instead of water. In manometer you can use mercury as well as water also, but here we can use generally mercury. ठीक है, this is the difference. तो एक्चुअल में होता क्या इसका वर्किंग. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शंस है. ये पिस्टन हमने आपको बता दिया, पिस्टन और प्लंजर. यू कैन से दिस इज अप और डाउन, और यू कैन से द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चर, जो एज पर डिज़ाइन जो उसमें होती है वो हम इसमें करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है बल्ब को देखा है, यू कैन सी द कॉलम, देयर इज द कट ऑफ पॉइंट होता है जहाँ पे बल्ब लगाते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट इज पैरामीटर इज द हाउ कैन वर्क. तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वी रिमूव द मर्करी इन द बल्ब एंड रेफरेंस द कॉलम बिलो द कट ऑफ पॉइंट. इसको थोड़ा सा डायग्राम साथ में बनाना चाहिए था. आपने क्या किया, हमने बिफोर कंप्रेशन, तो हमने मर्करी लेवल क्या कर दिया, बल्ब से नीचे कर दिया. ये कंडीशंस है, पहले जब हम मेज़र करेंगे फिर हम ये मेज़र करेंगे. उसका रीज़न है क्योंकि हमें इसके अंदर क्या क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है. जब इसके अंदर हम यहाँ से जो भी हमारी गैस है वो इसमें यहाँ पे अंदर आएगी, फिर जब जाएगी तो कुछ तो निकल जाएगी, कुछ यहाँ पे स्टे कर जाएगी, वो मुझे चाहिए. इसलिए दो डायग्राम बनाए हमने, बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन. दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यही पॉइंट हम यहाँ करें. पॉइंट इज दैट गैस कैन एंटर इनटू द बल्ब एंड कैपिलरी फर्स्ट कंडीशन में. column below, फिर the piston moves in the up direction, therefore the cause the suction of mercury comes into the mercury reservoir. जब हम ऊपर उठाएंगे तो सक्शन क्रिएट होगा, तो जो रिजर्वायर था जहाँ पे मरकरी को हमने रखा हुआ है उससे मरकरी क्या होगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी. फिर है कनेक्ट द रेफरेंस कॉलम टू द सोर्स ऑफ गैस ऑफ वैक्यूम यूज, प्रेशर इज टू बी मेजर. तो जहाँ का हमें मेजर करना है उतना तक हम उसको क्या करेंगे, उस मरकरी को जाने देते हैं, वो फिल करते हैं. जनरली क्या होता है, वी कैन रेफरेंस एट द जीरो, वहाँ पे वैल्यू रखते हैं. तो आफ्टर द फिलिंग ऑफ द गैस इन द बल्ब, अ मेजरिंग कैपिलरी स्टार्ट द फिलिंग ऑफ द मर्करी इनटू द बल्ब एंड रेफरेंस कॉलम बाय द मूविंग द पिस्टन टू डाउनवर्ड. पहले हमने उसको ऊपर उठा के उसको फिल किया, फिर उसको क्या कर दिया, डाउनवर्ड. किसको, पिस्टन को डाउनवर्ड कर दिया. तो जो हमने क्या, व्हेन द मर्करी क्लोजेस कट ऑफ पॉइंट द गैस ट्रैप्ड द बल्ब, मेजरिंग कैपिलरी स्टार्ट्स कंप्रेसिंग. Fill the mercury till the reaches zero reference point on the reference capillary. After reaching the mercury of the zero reference, put the capillary measure the difference between the measuring capillary and your जो है, that difference is known as H. I am moving to the upward also. You can see this is the before cup. हमने ऊपर उठाया, गैस भरी, उस पर क्रिएट किया, फिर हमने उसको प्लंजर को नीचे किया तो देखा मरकरी कहाँ तक जा रहा है, दैट इज़ योर रेफरेंस कॉलम. ये हमारा क्या है, रेफरेंस कॉलम. और फिर जो ये रेफरेंस कॉलम है और ये मरकरी कहाँ तक गया बल्ब में, मेजरिंग कैपिलरी में आपके ये यहाँ तक गया. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हमने मेज़र कर लिया. और फिर इसको जैसे हम मैनोमीटर में कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. ये समझ में आ गया. और ना क्या, अब इसका डेरिवेशन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पूरा. ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैनोमीटर में है हमने उसको आपको डिराइव करके बता रहे हैं. यू कैन वी कैन कंसिडर द, आता है इसका डेरिवेशन. समटाइम दे आज द एक्सप्लेन द डेरिवेशन द मैक्लिओड गेज. तो बिल्कुल ईजी है, आपको दो पैरामीटर याद रखना है, एक बॉयल्स लॉ और दूसरा रखना है कि कैसे हमारी मैनोमीटर वर्क करता है.
मेन जो वर्क था कि हमने कंप्रेस किया, उसमें हमने क्रिएट गैस को फिल किया, जो भी गैस है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको फिल किया, फिर हमने उसको प्लंजर को ऊपर उठाया और हमने उसमें मरकरी को फिल किया। जो कट ऑफ है तो कट ऑफ की वजह से हमारी रेफरेंस कैपिलरी की तरफ भी जाएगा वो, और जब वो लेवल हमारा 0 लेवल पर आ जाएगा तो दोनों का डिफरेंस, जो बल्ब है वहाँ पे जो डिफरेंस है और जो रेफरेंस है और जो मेजरिंग कैपिलरी, उन दोनों के डिफरेंस को हम ले लेंगे और उसको मेज़र करेंगे, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, वो प्रेशर की वैल्यू आएगी। लो प्रेशर मतलब वैक्यूम जो भी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे V1 बताने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम मेजरिंग कैपिलरी एज अ डिफरेंस देख चुके हैं आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिलरी का जो एरिया है वो स्मॉल ए से है। यू कैन सम टाइम और सम बुक्स यू कैन सी द कैपिटल ए। P1 is unknown pressure of gas, or P2 is the final pressure with the final volume of compression, but V2 is given by V2 is equal to A into H. A is your area of capillary, H is the difference between the कैपिलरी, जो मेजरिंग कैपिलरी है और जो रेफरेंस कैपिलरी के बीच में डिफरेंस है उसे हम कहते हैं H। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस हमारा आ रहा है P2 इज इक्वल टू P1, दिस इज द वाई एमस इज द मरकरी का वैल्यू डेंसिटी कह सकते हैं H, P2 is equal to P1 into Y mercury and या सिग्मा मरकरी या गामा मरकरी यू कैन से। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस है, वी कैन यूज। नाउ कमिंग टू द P1 V1, जब हम वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ P1 V1, we can calculate P1 MHS. When we solve it, this values, and we can last we can get the pressure is equal to P1 is equal to A is the area, this is the H, this is the volume 1 and mm of mercury. Actually we get the with the help of the McLeod gauge. प्रिंसिपल सेम है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। एक तो कंस्ट्रक्शन इसका है, वी आर यूजिंग द बल्ब, क्योंकि हमें एक रिजर्वायर चाहिए। उसमें क्या होता है कि वी कैन यूज़, जब हम उसमें प्रेशर देते हैं तो जो हमारा बैरोमीटर में होता है जो उसकी पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कब देंगे, पहले हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको जब कंप्रेस, पहले हम उसको बिफोर कंप्रेशन मेजरमेंट देखते हैं, फिर जब उसे हम कंप्रेस करते हैं तो हमारा मरकरी मूव करता है। ठीक है, तो मूव जो डिफरेंस आता है रेफरेंस कैपिलरी और मेजरमेंट कैपिलरी में, उसको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी गेज, ये भी हमारा आपका उसके लिए, ये भी तो आपने कहीं देखा ही नहीं, उसका यूज़ ही बहुत कम होता है, बट बताना इसलिए ज़रूरी है कि वी आर यूजिंग द जहाँ पे हमारा टेम्परेचर, हमने क्योंकि आपको दिखाया था एप्लीकेशन में टेम्परेचर गेज ऑल्सो। तो जब टेम्परेचर गेज की बात करेंगे तो दे आर यूजिंग द थर्मल कंडक्टिविटी गेज, दिस आर यूजिंग फॉर द 10⁻⁴ to 10⁻² torr फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट। इसके पहले जो हमने गेज से किया तो गेज प्रेशर, नाउ वी कंसीडर द वैक्यूम मेजरमेंट देन कमिंग टू द एब्सोल्यूट मेजरमेंट। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही है, गेज बेस्ड ऑन द चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी। We can use in the thermocouples, so we are the same, there are two types, Pirani gauge and thermocouple gauge। ये भी आपका है, जैसे ये सब वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारा टेम्परेचर रहता है। ये नाम भी सुना होगा, देयर इज द पिरानी गेज, द बेस टाइप वी आर यूजिंग द, दिस इज द अप्लाइड प्रेशर अननोन, दिस इज मेजरिंग प्रेशर, इसी के अंदर है। ये कंपनसेटिंग सेल है, तो वी कैन कंसिडर द दिस इज द R1 एंड R2 और वी कैन रिकॉर्ड फॉर देयर। तो दिस इज वायर डिपेंडेंट, वी आर यूजिंग द वायर, उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो जो डिपेंड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया, कंडक्टिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया इस टर्न डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडिया। तो डेंसिटी ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द देयर इज द गिवन, दिस इज द, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मेथड है तो वी कैन कंसिडर द चैम्बर्स बिटवीन द यूज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ यूज द वेरिएशन, मिनिमाइजेशन कॉज यूज द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो क्योंकि इतना इसका वो है कि वी कैन चेंज विद द हेल्प ऑफ द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इस तरह से भी हमारा क्या करता है, ये पुरानी गेज भी थर्मल कंडक्टिविटी गेज है, दिस इज डिपेंड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द पुरानी गेज की बात करेंगे हम, तो कांस्टेंट करंट पास करेंगे, भाई टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर हमेशा कहाँ से मिलता है और हीट चाहिए, कैन से कंडक्शन। तो दैट्स व्हाई वी मेंशन द कांस्टेंट करंट इज पास ऑफ द फिलामेंट पुरानी गेज चैम्बर। प्रेशर भी मेजर अप्लाइड द, जो चैम्बर है उसके ड्यू टू द करंट फिलामेंट हीट है, वो क्या होगा, हीट होगा। तो रेजिस्टेंस विच इज द मेजर यूजिंग द ब्रिज, तो जैसे आपका ब्रिज में करते हैं वो चेंज होता है, चेंज करने के बाद वी कैन कंसीडर द अप्लाइड प्रेशर, जो डेंसिटी उसके अराउंड है उससे फिलामेंट चेंज होगा और उसको क्या हम करेंगे, इस फिलामेंट चेंज की वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज होगा उसको हम मेजर करेंगे और कन्वर्ट किस में कर देंगे, प्रेशर में, कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस है ड्यू टू द चेंज इन करंट, जो करंट हमारे पास हो रहे हैं, जो टेम्परेचर आएगा उससे हमारा हीट होगी, उससे हमारा फिलामेंट का रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो बहुत वो होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं,
एक्यूरेट होते हैं, इसको यूज़ करते हैं। लो वैक्यूम बहुत ही हाई वैक्यूम मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, बट इसका ड्रॉबैक भी हमारे पास ये है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, उसका फिलामेंट टूट जाता है। तो हम यूज़ करते हैं थर्मोकपल गेज। तो जो थर्मोकपल गेज है, तो जो सेम थर्मोकपल प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि मेजर द प्रेशर और डिफरेंट प्रेशर्स। डिफरेंशियल प्रेशर से लिया था, तो आपका जो होता है फाइन वायर थर्मोकपल, द हीटिंग करंट बीइंग भी इनिशियली फिक्स्ड बाय द रेजिस्टेंस। द फिगर दिस डिवाइस इज यूजली यूज द कंपैरिजन पर्पस। सेंसिटिविटी जो होती है इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। ये जहाँ पे यूज़ होते हैं थर्मोकपल गेज इज द कंपोजिशन डिपेंड ऑन द कैलिब्रेशन। हम क्या यूज़ करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ योर वैक्यूम गेज। तो ये जो हमारा है थर्मल है। फिर हमारा आयोनाइजेशन गेज है, जिसमें क्या करते हैं हम हाई करंट हाई वोल्टेज पास करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक हॉट फिलामेंट होता है, एक कोल्ड फिलामेंट होता है। हम दोनों को बहुत जल्दी से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि अभी जब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं हाई वोल्टेज हम ज़्यादा देते हैं, देखा E1 और E2, तो ये क्या होता है हीटअप होता है। तो इससे आपका क्या होता है वी कैन आयोनाइज होती है गैस बम्बार्डेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो उससे क्या होता है हमारा ये पैरामीटर आयोनिक एमिशन इज क्रिएटेड, देन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द गैस एटम्स। इस तरह से ये हमारा क्या करता है, जब जो मेजरिंग हमारा कलेक्टर करंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं एज अ प्रेशर। क्या जनरली गैस के लिए आयोनाइजेशन है, तो गैस के लिए यूज़ होगा। अब क्यों इसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता था, तो हमने कंसिडरेशन कर लिया कोल्ड कैथोड आयोनाइजेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि वी कैन यूजिंग द हॉलो एनोड एंड बिटवीन द इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 2 किलो वोल्ट अप्लाइड बिटवीन देम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। वहाँ पे क्या था, क्योंकि जब करंट बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो काम नहीं करता था। बट यहाँ पे क्या है, बिटवीन द वी कैन अप्लाई द वोल्टेज, तो वी कैन कंसिडर द प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कॉज पर लेके जब हम करते हैं तो कोलिजन इज नॉट अगर सो द डिस्चार्ज इज नॉट आयोनाइजेशन इज मे बी नॉट बी इनिटेटेड। तो इस तरह से क्या होता है इंक्रीज लेंथ करता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं डिस्चार्ज पॉसिबली प्रेशर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अगर interaction between the positive ions and the electrons gives the higher magnetic field। इस कॉन्सेप्ट पे हमने इसको क्या बनाया हुआ है, ये हमारा cold cathode ionization gauge है। these are the industrial application, you can see the this is the direct this one and this one and this is the whole pipe, this is the pressure gauge, these are the this silver foil is showing as your the heat। तो ये these are our pressure measurement। Thank you।